Hello, Tamanna. Good evening, sir. Very good evening, Tamanna. How are you? Sorry, sir, you're not audible. How are you, Tamanna? Are we audible now? Yes, sir. I'm good, sir. How are you? I'm all good. So, give us a brief introduction about yourself. Yes, sir. So, my name is Tamanna Singharia. I have completed my schooling in 2013 from Kendra Vidyalaya and thereafter BSc in 2016 and LLB in 2019 from Guru Nanak Dev University, Amritsar. And, sir, I am from Bikaner, Rajasthan. Okay. Tamanna, uh, a very basic question with respect to your name. What is the difference between Tamanna, Abhilasha, Asha, Akanksha, and Apeksha? Sir, Tamanna means dream. Hmm. और अभिलाषा मीन्स सर किसी चीज की चाह होना Hmm. एंड द थर्ड वन इज आकांक्षा एंड आकांक्षा मीन्स सर sorry sir, I don't know the meaning of word akanksha. So, you are from Bikaner. Yes sir. Tell me one important thing about Bikaner. Tell me one important ruler of Bikaner who has been phenomenal in his uh, during his lifespan. Who you think has been very phenomenal? Sir, Maharaja Ganga Singh. Okay. So, what was the role of Bikaner in World War II? Sorry sir, I'm not aware of this, but I will revise this. Okay. क्या बीकानेर की किसी प्रोडक्ट के पास जीआई टैग है? यस सर। सर बीकानेर की जो भुजिया है नमकीन, उसके पास जीआई टैग है। टेल मी 5 famous bhujia shops from Bikaner. सर हीरालाल और लवली स्वीट्स एंड सॉरी सर, अभी मुझे इतना ही रिकॉल कर पा रही What about Bikaram Chandmal? What about Bikaner Bhujia Bhandar? हूँ। जी का नाम चांदमल। यस। चलिए ठीक है। अ, ये बताइए कि वेस्टर्ली विंड्स जो हैं, वेस्टर्ली विंड्स, उनका और बीकानेर डेजर्ट का क्या रिलेशन? अभी सर्दियां चल रही हैं, उनका क्या रिलेशन है? आई एम रियली सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। चलिए ठीक है। Why did you not do your LLB from Bikaner and why from Amritsar? सर एक्चुअली मेरा एलएलबी करने का जो मैंने डिसाइड किया था उसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, जब तक फॉर्म फिलिंग और जिनकी जो डेट्स या फिर एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम होने थे वो आउट हो चुके थे, मतलब उनका टाइम निकल गया था। तो और मुझे सर वो साल नहीं वेस्ट करना था, ईयर। तो बट किसी ने बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सजेस्ट किया कि अभी मेरे नोन में कि वहाँ पे अभी वैकेंसी ऑन है और मेरिट पे एडमिशन्स हो रहे हैं, तो यू कैन ट्राई। सो सर डेस्टिनी में था तो सर इसलिए मैंने वहां से फिर किया। So you believe in destiny. यस सर। Hmm? So why it happens so that a person who works hard sometimes gets more than what he deserves? क्या ये डेस्टिनी है या उसका हार्ड वर्क? सर दोनों ही है, मुझे लगता है कि So if it is ultimately hard work should prevail or destiny? सर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क शुड प्रिवेल, तो फिर डेस्टिनी का क्या रोल है? सर ultimately, I'm sorry sir, I want to change my answer. I think destiny will prevail, but hard work के बिना डेस्टिनी भी प्रिवेल नहीं कर पाएगी। हार्ड वर्क तो मैंडेटरी है ही, और उस सिचुएशन में और उस लाइफ टर्म में डेस्टिनी भी हमारा साथ देनी चाहिए, तभी थोड़ा सा हम अचीव कर पाते हैं गोल्स। जो से मिक्सचर ऑफ बोथ। यस सर। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा लीगल डिस्कशन पे। सो टेल मी 5 civil laws which are a part of 5 civil laws which are a part of your syllabus. सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, Hmm. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, Hmm.
Contract Act, Okay. the law, Hmm. and Constitution of India. Okay. So, what is the definition of a void contract? Sir, the contract which cease to be enforceable by law are as voidable. Can a contract be void ab initio? Yes, sir. Can you give me example? Sir, yes, sir. For example, the contract of सर जब दो पैरेलल लाइंस साथ में मिल जाएगी तो हम ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है. दिस इज अ void contracts because two parallel line can never meet. Is a void ab initio contract. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन है? Contract agreement which are enforceable by law is ओके. contract. एग्रीमेंट्स व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. Yes, sir. आपने जो जो डेफिनेशन दी, आपने जो एग्जांपल दिया, Yes. इज दैट एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ? No, sir. तो हाउ डज इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट? Sir, आपने बोला ये वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट, yes, sir. है ना? तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो इट हैज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. Yes, sir. तो वो वॉइड एब इनिशियो कैसे हुआ? Sir, the agreement which is enforceable by law are, सो इफ वी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट कि जब भी एक पैरेलल लाइंस दो मीट करेंगी तो वी आई सेल दिस प्रॉपर्टी टू यू फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10 रुपीज, yes, sir. ये एग्रीमेंट है. Yes, sir. But ये enforceable by law नहीं है, sir. अगर नहीं है तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं? वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट बोला ना आपने इसको, Yes, sir. तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं? Sir, I'm sorry, sir. I'm wrong here. हम्म, Yes, sir. क्या होगा ये? Sir, ये void agreement होगा. Tell me the criteria for filing up a suit of specific performance. When are you entitled for specific performance of an agreement? Sir, when the question is ownership of title, then in such situations we can file suit under section uh, 5 of specific relief act. क्राइटेरिया क्या होगा उसका कि आपके फेवर में क्यों डिसाइड हो? उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? Sir, title, ownership of title, ओनरशिप ऑफ और टाइटल किसका? property, immovable property, तो इम्यूएबल प्रॉपर्टी होगा किसका? प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट? the plaintiff. देन व्हाट अबाउट अगर ऑलरेडी आपके पास टाइटल है प्लेंटिफ के पास, व्हाई विल ही फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? Sir, because the other party is not vacating the possession of the property. Why would other party vacate the possession if you have a title? You must be having the possession. तो उसमें आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कैसे फाइल करेंगे? रिकवरी ऑफ पोजेशन का नहीं करेंगे? Yes, sir. Sir, What is the concept of bona fide necessity under Rent Act? bona fideness. Sir, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई प्रीमाइसेस है और मुझे मतलब फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर अगर मैंने रेंट पे दिया हुआ है और इन केस मुझे मेरे घर में मैरिज है और मुझे वो फ्लोर चाहिए, तो इट इज माय बोनाफाइड रिक्वायरमेंट कि मैं उन्हें नोटिस देके इविक्शन के लिए बोल सकती हूँ. हाउ कैन अ टेनेंट प्रूव कि ये bona fide रिक्वायरमेंट नहीं है? सर बाय प्रूविंग कि देयर इज नो सच मैरिज इज. Can there be, can a third party who is neither the tenant nor a landlord interfere in a rent in an eviction suit? सर कैन आई टेक अ मोमेंट. Yes. Sir, only if he that third person has interest in the premises.
फॉर and now we have तो interest. फॉर एग्जाम्पल सबलेटिंग, अगर टेनेंट सबलेट करता है थर्ड पर्सन, अगर उसके पास भी मतलब राइट होता है उसमें सूट के अंदर। सपोज एक एक सिनेरियो लेते हैं अपन, ठीक है। ए और बी, ए बी सी डी, चार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। ए ने एक प्रॉपर्टी एक्स को सेल आउट की, यस सर। सेइंग दैट आई हैव कंप्लीट राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी उसने एक्स को सेल आउट कर। यस सर। एक्स ने ए के अगेंस्ट एविक्शन का सूट फाइल किया फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, कि भाई ये अब मेरा टेनेंट है, ठीक है। इसने एक साल बाद प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोला था, तो अब एक साल हो गया है, उसने मुझे बेच दी थी, उसके बाद एक साल हो गया है, ही वॉज माई टेनेंट एंड ही हैज टू एविक्ट द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी हैज टू बी एविक्टेड। तो व्हाट इज द रेमेडी? अच्छा, कोर्ट ने एविक्शन का जो डिक्री वो फाइनलाइज कर दी, ठीक है, डिक्री पास कर दी, एविक्शन का डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है अब, ठीक है। व्हाट इज द रेमेडी विद बी सी एंड डी इन दिस केस? बी सी डी का रोल जब तक ए है तब तक उनके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है, ये ए के अगेंस्ट ही एग्जीक्यूट होएगा। कैसे होगा? बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन and by attachment of bank accounts, How by is, under what provision is the bank account attached? What provision of CPC? sorry sir, I'm not able to recall right now. चलिए, last question from my side. Tell me the difference between review and revision, and in what cases can a revision petition be filed before a court? Yes sir. Sir, in the case of review is filed to the court which passed the decree or order, and the person aggrieved by the decree or order may file review in the cases in the three circumstances when the appeal uh, when the time for appeal is allowed, but time for appeal is period of limitation for filing appeal is expired, and when appeal cannot be allowed, and the third is when the decision is passed by court of small cause. Okay, over to you, Nimish sir. And चलिए तमन्ना, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तमन्ना, व्हाई यू वांट टू बिकम अ जज? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मेरा ड्रीम है ही ये, और दूसरी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। सॉरी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मेरा ये ड्रीम है, दूसरा मुझे लगता है कि वुमेन्स के लिए एक बहुत अच्छी और स्टेबल जॉब है ये, और विमेन्स के लिए अच्छी और स्टेबल जॉब है? सिर्फ जुडिशरी ही अच्छी और स्टेबल जॉब है? इसके अलावा कोई और जॉब है जो स्टेबल भी है और अच्छी भी है? सिर्फ जज ही क्यों विमेन्स के लिए? तो मैं आपका थॉट जानना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली ये विमेन्स के लिए ही क्यों, मतलब। एज वी ऑल नो, लॉ इज सुप्रीम, and we are living in the society where we at somewhere we have people discriminates between the women and men, not all people but still, and somewhere women can have their right. नहीं, हमने तो आपसे सिंपल पूछा है कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं। तो मेरा एक तो हमेशा से सपना भी है, और हाँ, दूसरा ठीक। लगता है कि अ, मेरा इस लॉ में इंटरेस्ट है एक, इसलिए मैं हमेशा से जज बनना चाहती हूँ, और ये इसकी एक ऑरा है जज का, जो इसकी पावर, और इसके पास बहुत अच्छी पावर होती है इस जॉब में, और इस जॉब जॉब का बहुत अच्छा ऑरा भी है, और एक स्टेबिलिटी रहती है। तो पावर और ऑरा, मतलब
कोर एलिमेंट क्या है आपका जजशिप का? मतलब आपको पावर के लिए जज बनना है, या वो ऑरा फील करना है? आप मतलब हम आपको जज क्यों बनाएं? कोई तो मुझे दो ऐसा स्ट्रॉन्ग लगता रीजन बताइए कि है आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, जिन क्वालिटीज को हम ध्यान में रखते हो आपको जज बनाएं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन मैं बहुत काम हूँ। और मेरे में एक वो है कि मैं जो भी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, और एक प्रेशर जो एक इस फील्ड में थोड़ा बहुत रहता है, मैं उसको कामली हैंडल कर सकती हूँ। चलिए कोई एक सिचुएशन बताइए जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई और जिस सिचुएशन में आपने कामनेस के साथ उसको हैंडल किया। सर, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ। यस सर। सर, जैसे कि मैं 2019 में मेरा लॉ हुआ था, उसके अभी तक मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे ये लगता है ये फेज मेरे लिए अपने आप में ही डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की है, बट समवेयर लोगों का बोलना बार बार कि नहीं करी है। फिर एक लड़की होने के नाते मेरे को शादी का भी वो रहता था कि शादी कर लो, ये कर लो, अभी तक हुआ नहीं। तो मैंने उस चीज को अपने ऊपर हावी ना होते हुए कामली अपने स्टडीज पे फोकस करते हुए अपने ड्रीम को परस्यू किया। तो अभी आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? आप शादीशुदा हैं? यस सर, आई एम मैरिड। चलिए ठीक है, तो आपने शादी कर ली अभी हाल फिलहाल में? यस सर। चलिए ठीक है। और कोई दूसरी क्वालिटी जो हम आपको अपॉइंट करें? सर, जो प्रेशर रहता है इस फील्ड में, और एक बोल्डनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि इमोशनली ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे इमोशनली वर्क नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम ऐसे बहुत से सिचुएशंस और केसेस आते हैं जिसमें नॉर्मली वो इमोशन से बहुत। पर तो हमें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मिल जाएंगे, यस सर। जो इमोशन के साथ नहीं सोचेंगे। उनमें वो भी काम, उनका बिहेवियर भी काम होगा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। आप ही क्यों? सर, मुझे लगता है मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं उस सीट को एक जस्टिफाई कर पाऊंगी अगर मैं उधर जाती हूँ तो। चलिए ठीक है। आप बताइए, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, द फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड बिसाइड फंडामेंटल राइट्स, जो भी अदर पार्ट्स में राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। फिर लीगल राइट्स इसको बोलेंगे? लीगल राइट्स हैं जो प्रोसीजरल राइट्स है, जो सीआरपीसी में अपील का हो, बेल का हो, और अदर एक्ट्स में जो भी राइट्स है वो लीगल राइट्स होते हैं। तीनों राइट्स के बारे में एक एक एग्जांपल बताइए कि ये फंडामेंटल राइट का एग्जांपल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एग्जांपल और ये लीगल राइट का एग्जांपल है। यस सर। सर, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू right to vote. Sorry, sir. Right to vote. It's not a fundamental right. No, it's a fundamental right. And sir, राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट? yes, sir. राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट, ओके। देन प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अडल्ट सफरेज? Sorry, sir. It's a constitutional right. ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अडल्ट सफरेज? The adult suffrage means right to vote of the people who are completed the age of 18 years. 18 years? Yes, sir. Earlier, the Uh, age, Earlier it was 21 years. do you know the which constitutional amendment which reduces the age from 21 years to 18 years? Yes, sir. 61st Amendment. 61st amendment। Yes, sir. चलिए ठीक है। आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं? Sir, yes, sir. CRPC. सीआरपीसी में आप कंफर्टेबल हैं? चलिए ठीक है। आप ये बताइए, सीआरपीसी के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, डिमेन्योर। Demand. Yes, sir. ये डिमेन्योर जो है, ये कितना जरूरी है एक लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर? सर, डिमीनर का बेसिक मतलब तो हाव भाव, जो भी एक पर्सन, जो भी सामने एक्यूज है,
तो जब भी कोई भी पर्सन अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, तो उसके जो हाव भाव होते हैं, डिमीनियर होता है, वो उसके साथ मैच करते हैं, तो वो एक जज को ये चीज जज करने में हेल्प करते हैं कि ये पर्सन सच बोल रहा है या फिर उसका क्या सिचुएशन रह रही है, वो कितना क्या घम डिमेन्योर एडमिसिबल है एविडेंस में? नो एडमिसिबिलिटी क्या है डिमेन्योर की? स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है डिमेन्योर का? सर, इसका लीगल स्टेटस एविडेंस में एडमिसिबल, सॉरी सर, आई हैव आई थिंक मुझे इसका थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे इसका अच्छे से नॉलेज नहीं, समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? अभी सर, आपने एडमिसिबल बोला ना, तो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? यस सर, the provisions from section 6 to 50 of evidence act, these are the provisions which states that under this situation the fact is relevant, and admissibility means, sir, which is duly facts, relevant fact which are duly proved by the court, before the court, are the admissible. चलिए, एक सवाल और आपसे। आपने सीआरपीसी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोला है। Yes. सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए आप 5 हिस्टोरिकल जजमेंट्स बताइए जिसने सीआरपीसी के जो सीआरपीसी प्रोविजन से रिलेटेड हैं, और वो बड़े लैंडमार्क जजमेंट हैं जो आज भी इन जनरल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बहुत हेल्पफुल है। Yes, sir. Sir, one is DK Basu versus State of West Bengal, and Sir Lalita Kumari versus बीके बासु डील्स विद Sir the guidelines of rights of arrest. अरेस्ट। Yes, sir. And Sir Lalita Kumari versus State of UP, which states that FIR is mandatory to law in a cognizable case. And Sir, the third one is Sir, can I take a moment to recall? Sir, Arnesh Kumar versus State of Bihar, and Bhajan Lal versus State of Haryana versus Bhajan Lal, which deals with inherent power of, और अरनीश कुमार। and so that deals with arrest, in which arrest is not a routine process. It must be given the reasoning behind the arrest. सर, यस सर, अभी मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है। कोई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीआरपीसी में नहीं है और बीएनएसएस में है, सिर्फ 3, जो आपकी नजर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी नजर में। यस सर। Sir, one is the community service, which is explained in BNSS, and which is the new punishment provided by the criminal laws, in the criminal laws. And the second one is, sir, the time, the specific provision नहीं सर बताना है, या फिर the ये भी 3 बातें जो आपको लगती हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लीगल सिस्टम के लिए। स्पीडी जस्टिस के लिए जो टाइम फ्रेमिंग करी है, मुझे लगता है वो बहुत सही है। क्या टाइम फ्रेमिंग की है? सर, फॉर एग्जांपल चार्ज फ्रेमिंग के लिए 60 डेज 60 डेज कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ, चलिए और बताइए। इन द सब प्रोविजन ऑफ मर्सी पिटीशन। नहीं, आप स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे थे ना, स्पीडी ट्रायल पे रहते हैं। यस सर। हाँ, तो आपने चार्ज बता दिया, उसके बाद? यस सर। सर, चार्ज बताया, एक सर जजमेंट का टाइम फ्रेम करिए, दैट इज 45 डेज। जजमेंट डायरेक्ट मस्ट, 45 डेज? यस सर, 30 डेज
uh, 30 days can from uh, from the pronouncement of judgment, from the announcement. date of pronouncement of judgment. या तो एज फार एज पॉसिबल उसी दिन ही जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद में होनी चाहिए, और जिस दिन हियरिंग कंप्लीट हुई है उसी दिन ही जजमेंट प्रोनाउंस होनी चाहिए, या फिर 30 days, और विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर द 45 days. नहीं भैया बोल रहे ना 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। नो सर, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हियरिंग. ओके, चलिए ठीक है। और कुछ बीएनएसएस में जो आप बताना चाहेंगे अब इम्पोर्टेंट है स्पीडी ट्रायल के अलावा? Yes, sir. And this a mercy petition under section 472 of भारतीय नागरिक साक्ष्य. मर्सी पिटीशन जो है ये इनिशियली सीआरपीसी में नहीं थी, ये बीएनएसएस में है। Yes, sir. ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस हैं क्या मर्सी पिटीशन से रिलेटेड? सर, प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो कोई पार्ट. स्पेसिफिक आर्टिकल्स आपको याद है जिसमें मर्सी पिटीशन दे रखा है, मतलब प्रेसिडेंट की पावर्स और गवर्नर की पावर्स? यस सर, आर्टिकल 161 of governor, and article 70. सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ चलिए प्रेसिडेंट. ठीक है। जब मर्सी पिटीशन की बात, कुछ वर्ड्स हैं रेस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेशन, यस. आपको बेसिक मीनिंग पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमिशन एंड रेस्पाइट? यस सर. सर, कैन आई टेक अ मोमेंट? चलिए कुछ भी बताइए, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, कुछ भी, किसी का भी एक मीनिंग बता दीजिए, कम्यूटेशन, कुछ भी बता दीजिए। का मीन होता है जो सेंटेंस है उसकी मतलब रिड्यूस कर देना सेंटेंस के. चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, रिट ऑफ प्रोहिबिशन से आप क्या समझते हैं? रिट ऑफ प्रोहिबिशन सर, to which means to stop the proceedings when the it has not within the jurisdiction or beyond the jurisdiction of the lower court, and the superior court may stop the proceeding during the pendency of the suit. चलिए ठीक है, Yes, sir. ओके।